Good morning, students. Welcome back to the class 12, subject business study, chapter number 3, business environment. As we have taken this chapter as revision part 1, part 2, today we will see the part 3 as economic environment of India and the branches of new economic policies. This topic has been studied in 11th also. You have studied the same concept related to in 10th standard also. We'll go further again with the topic economic environment in India. So let's begin with the first topic, economic environment in India. As per the economic plannings, the government gave lead role to the public sector for infrastructure industries, whereas the private sectors was broadly given the responsibility of developing consumer goods industry. As in economic environment, it has been clearly said that the economic plannings for the government has been created and it has a 5-year plan policies. In that policies, it was been clearly said that the private sectors have to take care of consumer goods where customers are attracted, whereas in public sector, the government and the public sector organization will take care of in infrastructural industries. This topic has been clearly says on before sorry after independence and before 1991 section. At the same time, government imposed several restrictions, regulations, and control on the work of private sector enterprise. India experience with the economic planning was delivered mixed result. As what happens here, when after independence, the government tried to improve the technologies related to infrastructure, whereas private sector has been given responsibility for consumer goods. As at the same time, the government imposed many restrictions, many regulations, rules, and control the work of private sector. Private sector did not develop as what they were to be, but यहाँ पे ऐसा हम कह सकते हैं कि जब प्राइवेट सेक्टर को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की। इसके वजह से क्या हुआ कि आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी वो मिक्स रिजल्ट में हो गई। In the sense, if the private sector tries to improve more and more, but the restrictions which has been imposed by the government, it was not allowing private sector to go beyond, because government takes all the responsibilities and monitoring the activities which has been conducted by the private sector. So the monopoly could not conduct this kind of situations were been there earlier phases. So government also imposed certain restrictions over the private sector where the private sector cannot take advantage of the monopoly. In 1991, the economy faced a serious foreign exchange crisis और 1991 में तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइसिस आ गया था हमारे इधर, जिसमें हम लोगों को वर्ल्ड बैंक को बहुत पैसा देना था। तो यहाँ पर 1991 में इकोनॉमी फेस अ सीरियस foreign exchange crisis, high government deficit, and rise trends of price despite बम्पर क्रॉप। यहाँ पर ऐसा था कि यहाँ पे हम लोगों को पैसा बहुत पे करना था और हमारे पास डेप्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, डेफिशिएंसी हमारे पास बहुत हाई थी और हमारे जो प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगी, बिकॉज हमारी फॉरेन मार्केट के अंदर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी और प्रोडक्ट्स भी इतने एक्सपेंसिव हो गए थे कि कॉमन पीपल्स को परचेस नहीं कर सकते थे। तो ये सिचुएशंस बनी हुई थी एनवायरनमेंट चेंजेस में। हम लोगों के आगे का पार्ट में ऐसा कहा है कि जब नई इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम लोगों ने फ्रेम किया था, जिससे वर्ल्ड बैंक ने हमें मांगा था कि हम लोग हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, और उसी बेस पे हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बेस पर बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर। As a part of economic reform, the Government of India announced new economic policies in July 1991 for taking out the country out of the economic difficulties for the development of the country. कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। तो वो चेंजेस क्या थी? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इसके बाद से ही हमारा इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगा। The features of an economic policies are as follow.
फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू 6। जितने भी इंडस्ट्रीज थी उन सबको इंडस्ट्रीज को रिड्यूस करके जो मेन मेन इंडस्ट्रीज थी उनको लेकर आना था और कंपलसरी उनको लाइसेंस लेना कंपलसरी था। तो ये सबसे पहला काम किया गया था इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर कि इंडस्ट्रीज की जो नंबर्स थे उसको रिड्यूस किया गया 6 तक, और 6 नंबर्स तक रिड्यूस करने के बाद में उसको कंपलसरीली लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया था। The role of the public sector was limited to 4 industries for strategic importance। और जितनी भी जगहों पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस था वो सारे इन्फ्लुएंसेस को लिमिटेड कर दिया गया और उनके पास 4 मेजर इंडस्ट्रीज आ गई जो नॉर्मली पब्लिक को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हो, वैसी सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में आ गई और मैक्सिमम जितनी भी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी उसको धीरे धीरे उन्होंने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। Disinvestment was carried out in case of many public sector enterprises। गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट था उन्होंने धीरे धीरे वहाँ से इन्वेस्टमेंट हटाने लगे और वो प्राइवेट सेक्टर्स को पब्लिक की तरफ जो पब्लिक सेक्टर था उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ होने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे, पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे उसको कम करना शुरू कर दिया। जो पब्लिक का पैसा था उस एंटरप्राइज के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो गवर्नमेंट का कंट्रोल धीरे धीरे हटा दिया गया और वहाँ पे धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आने लगा और जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन आने लगा उतना ज़्यादा वहाँ की क्वालिटी अच्छी होने लगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे आने लगे, एमएनसीज आने लगी। Policies towards foreign capital was liberalized, and in many sectors, 100% direct foreign investments were allowed. FDI was directly allowed in many sectors from foreign capital. Many multinational companies came here with the full investments in their organization because the policy says that your country should be having liberalization to foreign country to come in your country and have a business। सो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी थे जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हुआ जरूर लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया तो इंडिया के अंदर जॉब्स भी स्टार्ट हुई, लोगों को जॉब भी मिली। Automatic permissions was generated for signing technology agreements with foreign companies। हमारे इधर ऑटोमेटिकली परमिशंस मिलने लगी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में और फॉरेन कंपनीज हमारे इधर आके टेक्नोलॉजी लेकर आती थी और उस टेक्नोलॉजी से हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही थी। पॉइंट नंबर 6, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट बोर्ड्स FIPB was set up to promote channel foreign investment in India। और ये FIPB जो है वो फॉरेन कंट्रीज को एनकरेज करती थी कि कम इन इंडिया, डू बिजनेस इन इंडिया एंड गिव एन एम्प्लॉयमेंट टू इंडिया। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में लाने की चैनल थी जिसके थ्रू लोगों को इनवाइट किया जाता था कि आप इंडिया में आओ और इंडिया में आके आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करो। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसका फ़ायदा लिया है, हमारे इंडिया में आए, इंडिया में आके बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाने के बाद में उन्होंने प्रॉफिट्स भी यूज किए और आज स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। नोकिया का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल अगर हम आगे और ले तो पेप्सी को हो गया। तो ये सब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके स्टैब्लिश हुई और इतनी हाई लेवल की स्टैब्लिशमेंट की कि आज वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये 3 चीज़ों की वजह से ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को हम लोगों ने हटाया एंड देन गवर्नमेंट हैज़ वर्कड वेरी हार्ड टू मेक दिस न्यू पॉलिसी। Hard work they have done for making these new policies to make liberal for everyone। Let's go with the first topic, liberalization. The economic reforms that was introduced aiding to liberalization, the Indian business and industry from all unnecessary controls and restrictions। हमारे इधर जो गवर्नमेंट के अननेसेसरी कंट्रोलिंग थी या जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटाए गए लिबरलाइजेशन के थ्रू और इंडियन बिजनेसमैन को प्राइवेटाइजेशन के लिए एनकरेज किया गया। साथ साथ में फॉरेन कंट्री के जो लोग थे उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा था कि वो लिबरलाइजेशन के थ्रू फॉर्म करे और बिजनेस को स्टैब्लिश करे। It relaxed the rules and regulations which restricted the government
for the private sector and also allow the private sectors to take part in economic activities that were exclusively reserved for the government sector. बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती थी। फिर ये लिबरलाइजेशन आने के बाद में, प्राइवेटाइजेशन आने के बाद में और ग्लोबलाइजेशन होने के बाद में, ये जो न्यू पॉलिसी आने के बाद में गवर्नमेंट के पास जितने भी रिजर्व पार्ट्स थे वो पार्ट्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया और प्राइवेट सेक्टर्स को उन्होंने एनकरेज करना शुरू किया और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बहुत लिमिट नंबर्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए प्राइवेटाइजेशन के लिए। सो इसी बेस पर यहाँ पर लिबरलाइजेशन क्रिएट किया गया। नेक्स्ट पार्ट इज liberalization of Indian industries have taken place with the respective. First point is abolishing license requirement in most of the industries expect a short list. बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो लाइसेंस लेने की कंपलसरी परमिशन लेनी पड़ती थी वो परमिशन लेने के लिए अब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे लाइसेंस कंपलसरी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जहाँ पे लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उसको एबॉलिश कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट इज freedom in deciding the scale of business activity, no restrictions on expansion or contracting contracting of business activity। हम लोगों को डिसाइड करने के लिए चांसेस मिलने लगे, हमारा बिजनेस कितना एक्सपांड होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो सब कुछ प्राइवेटाइजेशन को दे दिया गया। गवर्नमेंट यहाँ पे अब कोई भी कंट्रोल नहीं रखना चाहती, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगी तो हम कभी एक्सपैंड ही नहीं कर पाएंगे। तो लिबरलाइजेशन में ये एक बेनिफिट हुआ कि हमें डिसाइड करने का मौका मिला कि हम कितना एक्सपांड करना चाहते हैं। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत बार टैक्सेस के ऊपर बहुत इश्यूज थे, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस थे या जो बैरियर्स है उसको भी निकाला गया लिबरलाइजेशन में। फोर्थ पॉइंट इज फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपके गुड्स जो है, आपके जो सर्विसेज है, उसके ऊपर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या मैं खुद अपना प्राइसिंग कर सकता था। पहले गवर्नमेंट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखती थी, तो लिबरलाइजेशन के थ्रू हम अपने प्राइस डिसाइड कर सकते थे। पॉइंट नंबर 5 इज रिड्यूसिंग इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग द अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज थे उसको सॉल्व किए गए, जो भी टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई। टैक्स थे लेकिन कहीं कहीं पे टैक्स को निकाल भी दिया गया, क्योंकि फॉरेन कंट्री वाले जो थे या जो फॉरेन बिजनेस करने वाले थे वो टैक्स की वजह से इंडिया के अंदर नहीं आ रहे थे, तो टैक्स रिडक्शन किया गया और मार्केट में उनको लाया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नॉट एक्सपोर्ट, इट इज रॉन्गली रिटन ओवर देयर, इट इज एक्सपोर्ट। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स जो थे इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स थे उसको रिड्यूस कर दिया गया। making it easier to attract foreign capitals and technology to India। लिबरलाइजेशन के थ्रू बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। उस चेंजेस के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि फॉरेन कैपिटल्स कैसे आएंगे, अट्रैक्टिव पॉलिसीज बनाई, अट्रैक्टिव डिस्काउंट देना शुरू किया, सब्सिडीज देनी शुरू की, नई नई टेक्नोलॉजीज को इंडिया में लाने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज फ्रेम की गई, बहुत सारे ऑफर्स दिए गए इंडिया से। तो उसको देख के ध्यान में रख के लोगों ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, प्राइवेटाइजेशन पे। अब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर नॉर्मली आप यहाँ पर गवर्नमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करने वाली। यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट के रिलेटेड इश्यूज देखे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप देखी, और साथ साथ में यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नेशनल बिल्डिंग में, और प्राइवेटाइजेशन ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया और नेशन बिल्डिंग भी हुई। पब्लिक सेक्टर्स का जो डोमिनेंस था उसको हटा दिया गया, गवर्नमेंट का जो डोमिनेंस था उसको हटा दिया गया और प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। To achieve privatization in India, the government redefined the role of public sector in new policies of 1991, adopting policy of planning de-investment of private sector and decide the refer to loss making and sing enterprise to the board of industries and financial reconstruction। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी ना, गवर्नमेंट के अंदर बहुत लॉसेस बना रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां से डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, धीरे धीरे उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा लॉसेस बेयर कर रही थी या बहुत ज्यादा सिक फील कर रही थी
उस ऑर्गेनाइजेशन को या तो बंद कर दिया गया या तो फिर उन्होंने हैंड ओवर कर दिया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया था क्योंकि नेशन बिल्डिंग करना था। Disinvestment means transferring of ownership from the public sector to private sector. Disinvestment का यहाँ पे clearly meaning है। Disinvestment का यहाँ पे clear meaning यहाँ पर कहा गया है कि जो ownership जो थी वो ट्रांसफर की गई प्राइवेटाइजेशन से पब्लिक से प्राइवेटाइजेशन। इससे प्राइवेट सेक्टर्स को एनहांसमेंट मिलने लगा और बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का बेनिफिट्स लेना शुरू किया। If there was dilute of government ownership beyond 51%, it would result in transfer of ownership and management to enterprise to private sector. Before economic reforms, government के पास कम से कम 51% चांसेस होते थे और 51% शेयर्स होने की वजह से उनका डोमिनेंस होता था। बट जब प्राइवेटाइजेशन आया और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्रिएट हुई तो गवर्नमेंट के पास जो 51% शेयर्स थे वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे और प्राइवेटाइजेशन को 51% शेयर होल्डिंग देना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन का डोमिनेंस शुरू हुआ और उनसे बेटर मैनेजमेंट शुरू हुई और बेटर मैनेजमेंट शुरू हुई तो धीरे धीरे ग्रोथ भी होने लगा ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो प्राइवेटाइजेशन की हमने बात की। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। Globalization means we are making investments in different countries also, and different country people comes to India and do business globally. In simple words, globalization means interacting and interdepending of the countries with the economies of other countries to facilitate free flow of goods and services, capital, technology across boundaries. बाहर से हम लोग प्रोडक्ट लेकर आते हैं, यहाँ बेचते हैं, यहाँ का जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं यहाँ से हम फॉरेन कंट्री ले जाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट इंडिया से भी बाहर जाता है और बाहर से इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट आता है। उसी तरह से टेक्नोलॉजी हम लोग बाहर से इधर लेकर आते हैं और उसका इम्प्रूवमेंट करते हैं और हमारे इधर से भी टेक्नोलॉजी जाती है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर पहुँचती है और उसी के थ्रू हमने ग्रोथ भी की। Till 1991, the government of India has followed the policy of strict regulated imports in values and volume terms. बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इंपोर्ट करने के रिलेटेड, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए कोई इतना ज़्यादा बैरियर्स नहीं था। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट के अंदर पहला पॉइंट है लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर होना पड़ेगा। बहुत सारे टैरिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिससे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, क्वांटिटेटिव नंबर्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस थे। तो इंपोर्ट करना 1991 से पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और एक्सपोर्ट करते थे, इट्स ओके, एक्सपोर्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब इंपोर्ट करने की बात आती थी तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस बेयर करनी पड़ती थी। कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे पास है तो उसका इंडिया में यूज़ करना है, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। तो ये गवर्नमेंट इम्पोज कर देती रूल्स एंड रेगुलेशंस। A true global economy implies a boundary-less world where there is। पहला पॉइंट है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम लोग बाउंड्रीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते थे, बाउंड्रीज को हमने ओपन कर दिया था और जिससे क्या हो रहा था कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा था नेशन के अंदर और कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलने लगे। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन, कंपनीज को इन्वेस्टमेंट मिलने लगा बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो फॉरेन कंट्रीज में चलती थी उसको हम लोग इंडिया में लेकर आए और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बाउंड्रीज, हमारे इधर से लोग बाहर काम करने जाते हैं, बाहर से लोग इधर काम करने आते हैं, तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ। अ कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फॉर अ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर बाद में सार्क हो गया। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कंट्री टू कंट्री, तो ये जो चैनल्स हैं इनके थ्रू हमारे डिस्प्यूट सेटल हो सकते हैं। अ ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो था हम लोग ग्लोबली एक्सपैंड। ये सब हमने देखा, दो टॉपिक्स हमने आज देखे। होप सो यू हैव अंडरस्टूड। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।